اکثر اب آپ سوال کرتے ہیں کہ افسانچہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتا رہا ہوں۔ یہ اردو کی اپنی صنف سخن ہے، کہیں سے ادھار لی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ماضی کے ادیبوں نے اس پر طبع آزمائی نہیں کی، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ اسے اندازے سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی کہانیاں اپنے اندر گہرائی رکھتی ہیں۔ رضا خان کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے منافقت۔ میری باتیں سمجھ آئیں نا؟ اماں نے سرگوشی والے انداز میں پوچھا۔ ارے ہاں اماں، آ گئی، بس بھی کرے نا، مجھے تیار ہونے دیں، شاہدہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ آج شاہدہ کے ساس سسر شادی کی تاریخ لینے آنے والے تھے۔ اماں بھی بیٹی کو سسرال میں رہنے کے نایاب طریقے سکھا رہی تھیں، اور ایک بات یاد رکھ، سسرال میں سب کے ساتھ فری نہ ہو جانا۔ جیٹھانی اور نند کے بچوں کو خود سے دور ہی رکھیو۔ نند یا کوئی رشتہ دار آ جائے تو سر درد کا بہانہ بنا کر کام کاج سے جان چھوڑا لینا۔ اف اماں، اب سمجھ گئی، سب سمجھ گئی، اب ذرا باہر کا چکر لگائیں۔ آپ کی بہو رانی نے کچھ تیاری کی بھی ہے یا نہیں، دیکھ آئیں۔ کوئی ہاں نگوڑی کام چور کہیں کی، پتہ نہیں اب میاں کو کس درد کا بتا کر کام سے جان چھوڑا بیٹھی ہوگی، میں ذرا جا کر خبر لوں۔ جوتیاں پہنتی اماں بڑبڑاتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور دروازے کی آڑ سے بیمار بہو ساری باتیں سن کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ منیر احمد راشد کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے مشکوک۔ حمزہ کو حالات حاضرہ سے شغف تھا، تاریخ اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ ایک دن ابو گھر والوں کو بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ بولے، انہوں نے کھلم کھلا اللہ کے حکموں کے خلاف ورزیاں کی، ایسی باتیں اللہ سے منسوب کی جو کتاب اللہ میں نہیں لکھی تھی، دین میں نئی نئی باتوں کے اضافے کیے، نئے حرام حلال بنائے، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر آیات کے مفہوم بدل دیے۔ حالات حاضرہ سے واقف حمزہ نے مشکوک لہجے میں پوچھا، ابو، آپ یہودی علماء ہی کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ کرن صدیقی کا ایک دل دکھا دینے والا افسانچہ سنتے ہیں جو سچ پر مبنی ہے۔ عنوان ہے مکافات عمل۔ آج پھر بھارتی فوج بستی کے 4 جوان پکڑ کر لے گئی۔ پوری بستی میں خاص کر اٹھائے گئے لڑکوں قاسم، علیم، جمال اور حمزہ کے گھروں میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اب ان کی واپسی کی امید بہت کم ہے۔ اور یہی ہوا کہ چند دن بعد بستی کے نواحوں میں ان لڑکوں کی لاشیں ملی۔ قیامت کا سا منظر تھا، ان کی مائیں اور بہنیں پچاڑے کھا رہی تھیں۔ اے اللہ، ظالموں کو ظلم کا بدلہ دے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میرا بیٹا بے قصور تھا، میں تجھ سے انصاف مانگتی ہوں۔ ایسی ایسی فریادیں جو سننے والوں کا دل چیر دیں، لیکن یہ تو روز کا معمول تھا۔ پھر کچھ ہی دن بعد حسب معمول ایک صبح بستی کے چوپال میں لوگ جمع تھے۔ ریٹائرڈ ماسٹر عزیز الدین
अखबार पढ़कर सुना रहे थे। एक खबर पर उनकी नजर जम गई। आए दिन मिलने वाली बेगुनाह अफराद की लाशें उनकी नजरों में घूम गई। अखबार की शह सुर्खी थी, दुनिया भर में कोरोना के मरीजों में भारत का दूसरा नंबर, मईशत को सख्त धचका। आइए एक खूबसूरत अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है जीत। इसे तहरीर किया है मोहतरमा असावर शाह ने, भेजा है मैनचेस्टर इंग्लैंड से। पाकिस्तान के हर शहर में इस वक्त परेशानी की फिजा कायम थी। गलियां सुनसान थी, सब लोग धड़कते दिल लिए घरों में दुबकी टीवी के सामने बैठी थी कि हालात का दुरुस्त जायजा ले सकें। क्या बूढ़े क्या जवान, हर कोई दुआएं मांग रहा था। नफल माने जा रहे थे। अपने से बड़े दुश्मन ने हमेशा पाकिस्तान को हर मैदान में ललकारा था और फिर खामोशी का नाजायज फायदा उठाया था। पाकिस्तानी अवाम को इस बात का हमेशा से बहुत दुख था कि दुश्मन को जैसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए वैसे नहीं दिया जाता है। आज का दिन बहुत अहम था। आज दुश्मन को भरपूर जवाब देना था। सब जवाब के मुंतजिर थे कि टीवी स्क्रीनों पर एक वीडियो दिखाई दी। एकदम हर तरफ शोर मच गया। करारा जवाब था। खाली गली मोहल्ले लोगों से भर गए। मुबारकबादों का सिलसिला सा शुरू हो गया। आज के अहम दिन अवाम सब गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी थी। अफसानचे की आबियारी के लिए मैं और मेरे अहबाब पूरी तरह से मसरूफ हैं। अपने तई हर एक अपने हिस्से का काम कर रहा है। आप भी अपने हिस्से का काम करें। सिर्फ आपको इतना करना है कि ये सामने सब्सक्राइब का जो लाल बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाना है और फिर बराबर में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दें और साथ में ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। आपको सिर्फ 3 बार क्लिक करना है और ये 3 क्लिक हमारे हाथ को मजबूत करें, अफसानचा निगारी को मजीद आगे ले जाने में साथ देगी। उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अब अपने दोस्तों को भी राग़िब करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही दूर तक अफसानचा पहुंचेगा। क्यों कि जब अफसानचा लोड होता है उसकी खबर फौरन आप तक पहुंच जाती है और फिर आपके अहबाब भी आपके पेज पर उस अफसानचे का नाम देख लेते हैं, लिंक देख लेते हैं। तो बस आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दें। चाक फिक्शन फॉर्म ने शहर में एक अच्छी रिवायत कायम की है।
कोरोना के मर्ज ने जिस तरह से फासले पैदा कर दिए थे उसे पाटना शुरू कर दिया है। अदबी महफिल का तवातुर से इनकाद करके अदब की आबियारी कर रही है। इस पर दीगर हजरात ने तारीफ के पुल बांधे हैं, लेकिन मैं इसे इस मानों में काबिल तारीफ करार दे रहा हूँ कि नसर की महफिल भी उसी तवातुर से मुनक़द कर रही है। इस बार चाक फिक्शन फॉर्म की जानिब से शाम अफसाना व अफसानचा का इनकाद किया गया। साइमा नफीस, निशात खान, अली राशर, अरशद जावेद रिजवी ने अफसाना और मोहतरमा शहाना जावेद और इस खाकसार ने अफसानचे सुनाए। इन पर सामईन के तबसरे मज़ा दे गए, ख़ासकर मजीद रहमानी, डॉक्टर इकबाल हाशमानी, अज़हर खान वग़ैरह के तबसरे व तनक़ीद ने खूब मज़ा दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम बेहतर ना था, इसलिए सिर्फ 2 अफसानचे पेश खिदमत है। बेसिकली कॉलम निगारी अखबार में, नवाब एक्सप्रेस और ब्लॉगर हूँ मैं, हम सब वेबसाइट। लेकिन ये अफसानचे का जो रुझान हुआ, मुझे सबके सामने बरमला कहूँगी कि परवेज दिलगिरामी साहब ने मुझे हम सबके अफसानचे की तरफ हमारे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा। ये हमें भी इधर लेकर आए। इतना मतलब तहमीज़ दिया कि मैं अब काफी लिख रही हूँ अफसानचे, और ये अपनी वेबसाइट पे, इस पे वीडियो चैनल पे चला रहे हैं। तो हमारे उस्ताद 2 अफसानचे मैंने हमारे भी उस्ताद मुझे अफसानचे की तरफ ये लेकर आए। इसी बटेरे का रोज का मामूल था सुबह की सैर, अपने 2 मुहाफिजों और पालतू शिकारी कुत्तों शेरा और मोती के साथ खेतों में चहलकदमी करता और अपनी फसलों को फख्र से देखते हुए अपने आप को शाबाशी देता। इस दिन सैर के दौरान उसकी नजर हारी के बेटे पर पड़ी, जो खेतों से साथ दौड़ रहा था। उसने अपने शिकारी कुत्तों को शू का इशारा किया। इन कुत्तों ने बच्चे को भंबोर डाला। बच्चा चीख चीख कर दुहाई दे रहा था। घर में को खाने को कुछ नहीं था, इसलिए साथ चुरा रहा था। मैं चोरी कर रहा था, मुझे माफ कर दो। जख्मों से बुरी तरह खून बह रहा था। साई कुछ करे, लड़का जख्मों से चूर है, मर जाएगा। मुहाफिजों ने कहा, हाँ करते हैं, पहले गाड़ी निकालो, मोती और शेरा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, कहीं इन्हें चोट ना आई। जमींदार कहा। वाह वाह। मेरे इस अफसानचे का उन्वान है कोई भूल हुई। मस्जिद के सामने पुलिस मोबाइल खड़ी थी। नहायत तेजी से एक पुलिस वाला मस्जिद से निकला, सामने खड़े फल के ठेले पर गया और चुन कर कई अच्छे फल उठाए और फिर दूसरे ठेले पर पहुंचा, वहां से भी कुछ फल उठाए और फिर उसी ठेले पर आ गया जिस पर मैं खड़ा था। उसने वहां से भी कुछ फल उठाए और आगे बढ़ता कि मैंने उसे रोक लिया। भाई, आप तो नमाज पढ़कर निकले हैं और यकीनन इन फलों से अफ्तार करेंगे। जी हाँ, रोजा खोलने के लिए भी फल दे रहा हूँ। उसने मुखार निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, इन फलों से अफ्तार करेंगे तो क्या रोजा कबूल होगा? क्यों नहीं होगा, सियासतदान भी तो हज उम्रा करते हैं।
बहुत अच्छे, वाह बहुत वाह अच्छे। वाह